Hello student, you are learning the preparation of aldehydes and ketones, and this is the part third, that is the preparation of aldehyde ketones part 3, and the second reaction is by oxidation of methyl arine using chromium oxide in acetic acid. In all this reaction, you have to remember the reagent. Reagents are very important and the starting material. Here all the aromatic aldehydes we are going to prepare by these different methods, and the methyl benzene or toluene, which is also called toluene. When CH3 group is attached with this benzene ring, it is called methyl benzene or toluene. You should know both the names. And this, when reaction with chromium oxide and acetic anhydride, this is the acetic anhydride, and at temperature 273 to 283 Kelvin reaction taken place. How reaction taken place? This H group is replaced by CH3COO group. CH3COO group is acetate group, and therefore the name is benzylidene diacetate for this compound which is formed. Here 2 hydrogen will be replaced by the acetate group, therefore diacetate, 2 for di. Then here this compound benzylidene diacetate on acid hydrolysis produces the benzaldehyde, means this group converted into CHO, and the side product is formed, which is not written here and it is not necessary. Here the reaction should be written like this. If 1 mark is given for this reaction, half mark for first step and half mark for the second. What is the important condition? For all this reaction, what is the point of difference? The point of difference is that you have to remember the reagent, because in all the cases the aromatic benzene or substituted benzene. What is meaning of substituted? With that benzene ring some another group is attached. For example मिथाइल है, नाइट्रो है, इस तरह के कोई ग्रुप अगर अटैच रहते हैं तो मैकेनिज्म तो वही रहेगा. तो स्टार्टिंग मटेरियल अगर डिफरेंट हो जाता है तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट हो जाता है. जो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप है वो वैसे के वैसे प्रोडक्ट में भी रहेगा. तो आपको ब्रेन पावर ऐसे बुक में बॉक्स में दिया हुआ है, यूज योर ब्रेन पावर. तो वहां पे आपको रिएजेंट के नाम पूछे हैं और आप उस पे से रिएक्शन भी लिख सकते हो. जो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल्स नहीं बताए हैं, पर आप वहां पे नोट्स में जगह छोड़ के वो रिएक्शन लिख सकते हो. जब मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी तो बताऊंगी, वहां पे आप जगह छोड़ दो और बुक में से ब्रेन पावर या बॉक्सेस में जो कुछ दिया है एडिशनल वो वहां पे इंक्लूड कर लो. तो ये हो गया फर्स्ट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल एरिन. और मिथाइल एरिन का कौन सा एग्जांपल लिया हमने? मिथाइल बेंजीन. सेकेंड थर्ड है ये साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलीन. इस मेथड से भी हम एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं. और एक स्टैंडर्ड एग्जांपल हमने कौन सा लिया है? बेंजल्डिहाइड का. पर हम बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स से भी दूसरे कंपाउंड्स बना सकते हैं. तो साइड चेन क्लोरीनेशन में क्या होता है? जो साइड चेन है उसका क्लोरीनेशन करके हम कंपाउंड्स aldehyde के मिला सकते हैं aromatic, and this is the commercial method for the preparation of benzaldehyde. How reaction takes place? Toluene or another name is methyl benzene, which is written in the previous reaction. On chlorination in ultraviolet light, reaction takes place like this. 2 hydrogen atoms replaced by 2 chlorine atom, CaCl2, and this on hydrolysis, followed by hydrolysis. Here you have to remember this temperature condition at 373 Kelvin produces benzaldehyde, means this CaCl2 group converted into CHO. Here no description is given by me, because in examination when such type of reactions are asked, the weightage completely is given to the reaction. Correct reaction, correct reagent and their names. So here two-step reaction again from toluene to benzaldehyde. Here toluene to benzaldehyde, but the reagent is different. This is the point of difference you have to remember. Then the fourth reaction is Gattermann-Koch formulation of aldehyde. तो नेम रिएक्शन भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी गैटरमैन कोच रिएक्शन आपको पूछे तो आपको
फट से क्या ध्यान में आना चाहिए, रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड विद अनहाइड्रस LCl3 एट हाई प्रेशर। ये आपको चारों भी कंडीशन ध्यान में रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अनहाइड्रस LCl3 है एट हाई प्रेशर। और स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, बेंजीन है। और ये बेंजीन के साथ यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा कौन से ग्रुप से, CHO। हियर CHO ग्रुप्स कम हियर इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एंड बेंजीन। अब ये रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और इसमें सिर्फ आपको ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ बेंजीन की रिएक्शन दी हुई है, पर एग्जाम में आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए भी ये रिएक्शन आ सकती है। और अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आता है तो क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो वैसा का वैसा ही यहाँ पे रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, तो उस हिसाब से नाम चेंज होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आपके बुक में यूज ब्रेन पावर दिया हुआ है, उसमें आप ये एग्जांपल्स, एडिशनल एग्जांपल्स देख सकते हो। जहां पे आपको रिएजेंट पूछा है तो आप वो वाली रिएक्शन भी लिख सकते हो या एडिशनल। इसलिए हर रिएक्शन के बाद आप थोड़ी जगह छोड़ दो, यानी ताकि वहां पे एग्जाम में बुक में जो एग्जांपल्स दिए, एडिशनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आप सॉल्व करके देखो और उसको यहाँ ऐड कर लो। सो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको लर्न करने में आसानी चाहिए। देन यहाँ पे ये तो बेंजीन है, पर यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी आ सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, आप ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे बेंजीन की जगह क्या दिया है, नाइट्रोबेंजीन दिया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, नाइट्रो ग्रुप भी रहेगा और जो हाइड्रोजन है वहां पे CHO ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो डी, प्रिपरेशन ऑफ एल्डेहाइड ओनली फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर से भी हम एल्डेहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डेहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जनरल रिएक्शन दी हुई है। मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम्पल कैसे लिखना, आपने को घर में होमवर्क है ये, वो एग्जाम्पल नोट करके रखना है। अब ईस्टर RCOO R-, ये दो अल्किल ग्रुप डिफरेंट है, दिखाने के लिए R- हम दिखा रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट है, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो उसको ऐसे भी लिखा जाता है, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसे भी उसको लिखते हैं। तो on acid hydrolysis at temperature 195 Kelvin gives aldehyde RCHO। यानी क्या होगा, जो COOR ग्रुप है उसका कन्वर्शन किसमें, COO ग्रुप का कन्वर्शन हो रहा है CHO ग्रुप में। तो ये रिएक्शन आपको एग्जांपल घर में लिखना है। ये दोनों R ग्रुप को आप रिप्लेस कीजिए CH3 से। अगर दोनों R ग्रुप को हम CH3 से रिप्लेस करते तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। और ये क्या है, RCOO। तो यहाँ पे दो कार्बन आते हैं, इसलिए इथेनॉइड, मिथाइल इथेनॉइड और मिथाइल एसीटेट। ओके, आपको घर में ये रिएक्शन लिखना है। ये R ग्रुप को दोनों से CH3 को रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा मिथाइल इथेनॉइड और मिथाइल एसीटेट। ये हमने इसके पहले देखा है, ये फॉर्मूला। सेम रिएजेंट रहेंगे और यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3CHO। और हम CH3CHO को क्या कहते हैं, एसिटाइलडिहाइड और इथेनॉल, मींस प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम इथाइल एसीटेट। तो कंडीशन क्या हो गया, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन दिस मैनर ऑल द प्रिपरेशंस related to the aldehyde and ketone is now completed, and we will discuss the preparation of acid in the next video.